Hello students, we'll be starting with group 16 elements today, and group 16 we will start with the introduction and electronic configuration of group 16 elements. Now these are your group 16 elements, which involves O, that is oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium. Now these elements are present in group 16 of periodic table. They are known as chalcogens. These elements are known as chalcogens. The meaning of chalcogens is ore forming elements. Ore forming elements. In most of the ores that you find in the earth crust, you get these ores in the form of oxides or sulfides. Since oxygen and sulfur are the elements of group 16, group 16 is known as chalcogens, that is ore forming elements. Now you can see these elements, they belong to group 16 of the modern periodic table. Let us now have a look at the occurrence of these elements. Oxygen is the most abundant of all the elements on the earth, right? So in the earth crust, oxygen is most abundant. In the earth's atmosphere, oxygen is the second most abundant, but in the earth crust, oxygen is the first most abundant element. Oxygen makes around 20.946, that is approximately 21% of volume of dry air, that is atmosphere. Most of the oxygen present in atmosphere is produced by photosynthesis in the plants. You know, plants take up sunlight, right? Carbon dioxide from the atmosphere, and they give out oxygen back into the atmosphere. Oxygen makes 46.6% by mass of Earth's crust, while sulfur constitutes only 0.03 to 0.1% of the earth crust. So sulfur is present in extremely small amounts in the earth crust, whereas so the first most abundant element in the earth crust is oxygen. Second comes silicon. Third is aluminium. Mind you, I am talking about earth crust. Okay, sulfur is present in extremely small amounts in the earth crust. Now in what form sulfur is present in the earth crust? So sulfur mainly occurs in form of combined sulfur, that is in form of like gypsum, ores like gypsum, that is a ore of calcium, Epsom salt, ore of magnesium, barite, ore of barium. It also occurs as sulfides in the ores such as galena, zinc blende, copper pyrite. Traces of sulfur occur as H2S in volcanoes. So you know, during these volcanic eruptions, certain gases come out. One of those gases is H2S, and we find sulfur in the form of this H2S gas. Sulfur is also present in organic materials such as eggs. Yes, your egg yolks, they contain sulfur. Protein. There are certain amino acids, sulfur containing amino acids, which incorporates sulfur into the protein. Then garlic, onions, mustard, wool and hair. All these organic substances, they have sulfur in them. Selenium and tellurium are found as metal selenides and tellurides in sulfide ores. So in sulfide ores, metal selenides and metal tellurides are present in traces, and you find them in sulfide ores. Polonium occurs in nature as a decay product of uranium and thorium. So when uranium and thorium, these are radioactive substances, when they decompose or when they decay, then you get polonium from them. Polonium is a radioactive element and having a half-life of only 13.8 days. It means that in 13.8 days, half of the polonium will be decayed. Livermorium is a synthetic radioactive element. It is produced in extremely small amount and it has a half-life of a fraction of a second. Just imagine. Livermorium has a half-life of a fraction of a second. Because it has half-life of a fraction of a second, you know, this will limit the study of livermorium. Because even if you make it, right, in fraction of a second, it gets decomposed or it gets decayed. So we cannot study the properties of livermorium, right? And hence, you will not find the chemistry of livermorium established as such like other elements. So in this chapter, we will only discuss up to polonium and will not take into consideration livermorium. Is that okay? Electronic, let us have a little look at electronic configuration of group 16 elements. See, the general electronic configuration will be NS2 NP4. Why? Because see, they contain 16
they are present in 16 group of the modern periodic table. 16 group. So how many valence electrons they will have? They will have 16 minus 10, that is 6 valence electrons. Now these 6 valence electrons will be present in the form of Ns2np4, right? These 6 valence electrons will be present in the form of Ns2np4. Okay, the Ns subshell will be completely filled, whereas in the next p subshell you have 4 electrons. Okay, so as we know the elements that we have already seen, oxygen atomic number 8, right? Now you know how to write the atomic numbers. What you have to do, you have to add 8 to it, then add 18 to it, again you add 18 to it, then you will add 32 to it, and again you will add 32 to it. So in this way you will get the atomic numbers. Now EC, electronic configuration, this is the complete EC, but we are not going to write like this. We are not going to do this. This already you know. This can be written by making the use of Aufbau, Pauli and Hund rule. Come here to the brief representation of EC. Now see, first you write inert gases, right? Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, that you should be knowing. Now since the electronic configuration is Ns2np4, here it will be 2s2 2p4. Since oxygen belongs to group 2, period 2 of the modern periodic table, the valence shell will be 2s2 2p4, then 3s2 3p4, then 4s2 4p4, but then 3d10 will be incorporated. Here 5s2 5p4 and 4d10 will be incorporated. Again 6s2 6p4, here 4f and 5d will be present, and in the last one, that is livermorium, 7s2 7p4, in that 6d and 5f will be present. So you have to just remember that your d orbital begins from selenium, right? From selenium your d orbitals begin. Selenium and tellurium you find d orbitals, and in polonium and livermorium you find d as well as f orbitals. This will help us in learning the what we call physical properties of these elements. So let us solve MCQs. So the most abundant element in the earth crust is oxygen, correct. Which is the second most abundant? Silicon. Third most abundant? Aluminium. Okay, so see, you have to keep this thing in mind, what they are asking, earth crust or atmosphere. If it is atmosphere, your answer will be nitrogen. If it is earth crust, your answer will be oxygen. The 16th group element among these is, बताओ कौन सा 16th group element है? D, polonium, correct. The characteristic electronic configuration of group 16 elements is, group 16 का characteristic electronic configuration क्या है? C, Ns2np4, correct. Let us now talk about physical properties of group 16 elements, right? Physical properties of group 16 elements. So physical properties. The first we'll talk about atomic radius. Now atomic radius, if we compare the elements of group 15 and group 16, as we go from group 15 to group 16, right, what will happen? The effective nuclear charge will increase. The effective nuclear charge will increase, right? So the effective nuclear charge will increase, because of which, as we move from group 15 to group 16, what happens? Atomic radius will decrease, right? Atomic radius will decrease. So the atomic radius of group 16 elements is smaller than the atomic radii of group 15 elements. The reason is increase in the effective nuclear charge, right? Because what will happen? The orbits will shrink and the size of atom will reduce. Now same way, as we move down the group, we will see that atomic size increases, right? As we move down the group, the atomic size increases. See what happens as we move down the group, right? As we move down the group, what will happen? See, oxygen, it will have only 2 orbits. Then sulfur will have 3 orbits. Similarly, selenium will have 4 orbits, and so on. So as we move down the group, the electron will be added to the next orbit. As we move down the group, the electron will be added to the next orbit. So distance from the nucleus increases, as a result of which the atomic radius increases. Very simple, basic, right? This is the very basic thing. You should be knowing this. Next, ionization enthalpy or ionization energy. Now see, the ionization energy value decreases gradually on descending the group as the atomic number and size increases, right?
As you move down the group, what happens? That size goes on increasing. So it becomes easier and easier to remove the valence electron. Why? Because distance between the nucleus and the valence electron is going to be increased. As a result, it becomes easier to remove it. Right? So what will happen? Because of this, ionization enthalpy will decrease down the group. Easy? Right? Now, ionization values of group 16 elements are relatively low compared to the group 15 elements of the corresponding periods. Let me give you one example. Right? Let me explain you this with help of one example. Say for example, I have nitrogen, which is the first element. Nitrogen is the first element of group 15. And suppose if I have oxygen, which is the first element of group 16. So if I write their electronic configurations, I will find the electronic configurations to be like this. This is 1s orbital, 2s, and this is 2p. Right? So this will be the electronic configuration of nitrogen and this will be the electronic configuration of oxygen. Now see what is happening. Here, suppose if I want to remove one electron from nitrogen. It will be very difficult to remove an electron from half-filled orbital. You already know that completely filled and half-filled orbitals are stable. Right? So it will be very difficult to remove electron from here. But can you remove one electron from here? Of course, yes. Right? Because after removing one electron, it will achieve the electronic configuration of nitrogen and hence it will become stable. So it becomes very easy to remove one electron from here and we can easily do it. So nitrogen and oxygen, when we compare the ionization enthalpies, oxygen की जो ionization enthalpy होगी वो nitrogen से काफी कम होगी. ठीक है? Because it is easier to remove one electron from here, while it is not that easy to remove it from here because of half-filled orbitals which are stable. Is that clear to everybody? Okay. So this is one point that you have to take care of. Okay. Now see, these are again with electronic configuration and sizes. I am showing you the chart. So you see, as you move down the group, what is happening? The size goes on increasing, right? So the electron that has to be removed, right? The electron that has to be removed is away and away from the nucleus. See, it is away and away from the nucleus. So attraction between nucleus and valence electron decreases and hence it becomes easier to remove an electron. Is that clear? As I told you, see, down the group what happens? Atomic number increases, your atomic size increases, and because of which the valence electron is added away from the nucleus and hence ionization enthalpy decreases. Clear? Now let us talk about the next physical property, that is electron gain enthalpy. Now see, this is very interesting. Just let us recall what is electron gain enthalpy first. Right? Let us recall that first. See, electron gain enthalpy is, suppose this is a neutral atom. Right? And what you have to do, you have to suppose bring an electron from outside into this neutral atom. You are bringing an electron from outside into the neutral atom. Right? So as a result, what will happen? Energy will be released. This energy is known as electron gain enthalpy. It is known as electron gain enthalpy. This energy is known as electron gain enthalpy. Clear? Right? Energy is released and this energy is what we call electron gain enthalpy. Easy? Now see what is happening. Because the energy is released, the value of electron gain enthalpy will be negative. Energy released is always negative. So value of electron gain enthalpy will be negative. So more the energy released, more negative will be electron gain enthalpy. More the energy released, more negative will be electron gain enthalpy, and more negative the electron gain enthalpy, more will be the stability of the species formed, right? Because जितनी तुम energy निकाल दोगे इसमें से, उतना ही वो ज़्यादा stable हो जाएगा, right? तो मैंने क्या बोला? I'll write here. More negative value of electron gain energy or electron gain enthalpy, more stable and more readily is the negative ion formed, right? More stable and more readily is the negative ion formed. So
here. Is this clear to everybody, right? Now here we see that as we move like this is oxygen, this is sulfur, selenium, tellurium and polonium. So as we move from oxygen to sulfur, the value of electron enthalpy becomes more negative, and again it becomes less negative, right? The value of electron enthalpy becomes more negative as we move from oxygen to sulfur and becomes less negative as we move from sulfur to polonium, right? Now what is the reason behind this? Let's understand. What happens? This is oxygen, this is sulfur. Right, this is 1s, this is 2s, this is 2p. Sulfur, I can write like this: neon, 3s and 3p. This is the electronic configuration of oxygen, and this is the electronic configuration of sulfur, right? Now see what is happening. Suppose if I want to bring this electron, in oxygen, so what will happen? This electron, when I bring it to 2p orbital, the size of 2p orbital is very small. Because of this, what will happen? Inter-electronic repulsions take place between them. Right? मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन रिपेल करने शुरू हो जाएंगे. Because of the repulsion, what will happen? The size of O minus ion will be more. Right? That is okay. But here what will happen? That less energy will be released, because O minus will be comparatively unstable. है कि नहीं? O minus will be comparatively unstable as compared to O atom. ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रॉन इसमें डालते हो 2p में, 2p की साइज कम होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स, अंदर जो इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन है वो बढ़ जाती हैं, है कि नहीं? तुमको अगर फुटबॉल खेलना है तो तुम कहाँ जाओगे? यू विल गो टू द ग्राउंड, यू विल नॉट प्ले इन द क्लास. हाँ, कुछ लोग खेलते हैं, वो अलग बात है क्लास में भी, है ना. अदरवाइज यू गो टू द ग्राउंड, बिकॉज ग्राउंड यू गेट मोर स्पेस टू प्ले. क्लासरूम छोटी जगह है, क्लास में थोड़ी फुटबॉल खेलोगे, ठीक है? तो ये छोटी जगह में अगर तुम इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उनके बीच में रिपल्जन होगा. रिपल्जन होने की वजह से क्या होगा? O माइनस अनस्टेबल होगा और वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की वैल्यू होगी लेस नेगेटिव. जबकि जब हम सल्फर की बात करें और यही इलेक्ट्रॉन अगर हमको सल्फर में डालना है तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन आएगा 3p ऑर्बिटल में, जिसकी साइज बड़ी है. साइज बड़ी होने के कारण इनके बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा वो काफी कम होगा, राइट? तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो होनी चाहिए, यहां से जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, राइट, वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी. इसलिए व्हेन वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड एंड मोर नेगेटिव विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. लेकिन तुम जब सल्फर से पोलोनियम की तरफ आ रहे हो, तब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज एडेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो उसकी वजह से क्या होगा? जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस को इतना इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एनर्जी कम रिलीज होगी, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, राइट? अब ये क्वेश्चन तुमको हो सकता है, तो फिर सर ऑक्सीजन में ऐसा क्यों हुआ? ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, देखो 2p में ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस के नजदीक है. देखो यहां पे तुमको क्या है, सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं देखना है, अट्रैक्शन रिपल्जन का बैलेंस समझना है. नो डाउट, अगर तुम यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन में 2p में ऐड कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, एग्रीड, 100% एग्रीड, बिल्कुल सही है. लेकिन जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, राइट, दैट आउटवेज और दैट ओवरवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहां पे रिपल्जन इतना ज्यादा होगा कि वो अट्रैक्शन का इफेक्ट कुछ काम, मतलब हमको कंसीडर नहीं करना है. ओके, दैट इज वाई हम यहां बोलते हैं कि ऑक्सीजन टू सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, सल्फर टू पोलोनियम लेस नेगेटिव. आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, अच्छे से समझ में आया. ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेना इसको अच्छे से. जनरली तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी शुड बिकम लेस नेगेटिव, लेकिन यहां पे क्या है, ऑक्सीजन टू सल्फर इट इज मोर नेगेटिव एंड फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इट इज लेस नेगेटिव. क्लियर? ओके. ओके, एमसीक्यूज देखेंगे. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स, बताओ
ए बी सी डी क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग पूछा है, इंक्रीजिंग नहीं पूछा, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग पूछा है। सी होना चाहिए, राइट, है ना। ऑक्सीजन सबसे कम साइज, सल्फर उससे ज्यादा, सिलेनियम की उससे ज्यादा, टेलुरियम की उससे ज्यादा, तो सी शुड बी योर आंसर। ध्यान से पढ़ो, डिक्रीजिंग बोला या इंक्रीजिंग बोला है, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किससे ज्यादा होगी? एन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, हमने अभी देखा, एन में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन से। हाँ, फ्लोरीन से ज्यादा होगी, सल्फर से भी ज्यादा होगी, सल्फर से ज्यादा होगी ना। वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी हियर, नॉट इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन यू अटेम्प्ट इट। तुम लोग जो बोलते हो ना एमसीक्यूज में ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो यही प्रॉब्लम होता है। तुम लोग क्या है, पढ़ते आधा हो, सोचते उससे आधा हो, और इतनी जल्दी होता है कि बस तुम लोग कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी कर डालो, राइट, ये प्रॉब्लम होता है। रीड, मैं तुमको एक एडवाइस देता हूं, क्या करो, जब तुम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, यू पुट योर फिंगर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन, ऐसा करके पुट फिंगर ऑन इट एंड देन यू रीड। तो कुछ भी वर्ड यू नो, कुछ भी फ्रेज या वर्ड होगा वो मिस नहीं होगा तुमसे, राइट, तो अकॉर्डिंगली यू डू। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो, जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। ऑक्सीजन is the second most electronegative element in the periodic table. First is fluorine, second comes oxygen, ठीक है। तो जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव, सल्फर उससे कम, सिलेनियम उससे कम, टेलुरियम उससे कम, पोलोनियम उससे कम। तो क्या होगा कि अगर तुम्हारी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो वही हम देखते हैं। अब देखो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की जो वैल्यू है, डोंट वरी, ये तुमको याद नहीं रखनी है, जस्ट बता रहा हूं, राइट। पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, फ्लोरीन की 4 होती है, सेकंड नंबर ऑक्सीजन आता है 3.5, राइट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, जस्ट देख लो। तो दिस आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेस, राइट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बिकॉज क्या होता है, जब ये एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ मोर साइज। इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा डाउन द ग्रुप, राइट। और जैसे हम तुमको बताया, इस कारण से जो ऑक्सीजन और सल्फर है वो नॉन मेटल्स हैं, प्योर नॉन मेटल्स। सिलेनियम और टेलुरियम है, दे आर मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स बोल सकती हो। और पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इट्स अ मेटल लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पहले हम इतना स्टेटमेंट समझते हैं, ठीक है, बारी बारी समझेंगे, सारा एक साथ नहीं कर सकते। पहले हम ये समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये राइट, इट ग्रेजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये समझते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों तुम्हारे बढ़ते हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब कि तुम ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम की तरफ आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, राइट। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो और कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जब तुम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आ रहे हो तो क्या होता है, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो उसको बॉइल करना हो या मेल्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है यहाँ तक। अब लेकिन बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अब ये देखते हैं। पोलोनियम हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन टेलुरियम। पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेलुरियम से कम है। इस वजह से हमारा जो ऑर्डर है, देखो, ऑक्सीजन सल्फर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, सिलेनियम अगेन इट इंक्रीजेस, टेलुरियम अगेन इंक्रीजेस, लेकिन पोलोनियम में डिक्रीजेस। तो पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टेलुरियम से कम होगा। क्यों कम होगा, दो रीजन है उसके। नंबर 1, ग्रेटर इनर्ट पेयर इफेक्ट।
greater inert pair effect as experienced in polonium. समझते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखो ग्रुप 16 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? हम जानते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 + 6 है ना, उस पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वो मैक्स टू मैक्स 6 लूज कर सकता है। ओके तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन जब तुम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, राइट, तब क्या होगा? तब हम देखेंगे कि सर ये शुरू के जो एलिमेंट्स है उसमें तो चलो +6 है, लेकिन जैसे तुम नीचे आ रहे हो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 या +4 उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं, लेकिन पहले हम फिर से समझते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे तुम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, वैसे जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, राइट। ग्रुप 13, 14, 15, 16 सब में ये इफेक्ट देखने को मिलती है। जब तुम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, वैसे जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी लेस देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा है +6, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कम हो जाएगा, समझ रहे हो, राइट। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ऐसा होता क्यों है समझते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर्मोरियम की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इसके अंदर इन दोनों के अंदर d ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर d और f दोनों ऑर्बिटल है, राइट। d और f ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनका शेप होता है डिफ्यूज, उनका डिफ्यूज शेप होता है। तो डिफ्यूज शेप होने की वजह से वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है जो अट्रैक्शन कम करने का काम है, राइट। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी ऑर्बिटल्स आएंगी वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम करेंगी। इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, है कि नहीं। फिर से एक बार, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी ऑर्बिटल्स आएंगी उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि वो क्या करेंगी? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम करेंगी। अब इनका शेप ही कुछ इस तरह से होता है, कुछ ऐसा डिफ्यूज शेप होता है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन कम करने का काम है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, मतलब इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, पोलोनियम में d और f दोनों ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स है, NS2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नाउ दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्ट प्ले करना पसंद नहीं करेंगे या बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे। तो उसकी वजह से खाली ये NP4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारा जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, राइट, नीचे आते आते क्या हो गया, वो +4 स्टेबल हो गया, +6 स्टेबल नहीं रहा, +4 स्टेबल हो गया। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? सुना ये पहले कभी सुना ये वर्ड 11th स्टैंडर्ड में, राइट, ओके। एनीवेज नहीं समझ में आ रहा था, कैन एक्सप्लेन अगेन। सबको समझ में आया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ओके। तो पोलोनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों ज्यादा होगा सर? d और f ऑर्बिटल्स दोनों के प्रेजेंट होने के कारण, यहाँ पे तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा। देखो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ बी अवेलेबल। तो उसकी वजह से क्या होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ अवेलेबल इन केस ऑफ पोलोनियम, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से सेकंड पॉइंट क्या है,
लेस वांडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, राइट। ये दो कारण से पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेल्यूरियम से कम हो जाएगा। इजी, ठीक है। आज का देखना इसको। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम वही ऑर्डर होगा, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट का होगा। हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग नहीं, हमने एक साथ ही पढ़ा दोनों, ठीक है, सेम ऑर्डर होगा। The large difference in the melting point of oxygen and sulfur is due to change from diatomic O2 to octaatomic acid, right। यहाँ पे देखो diatomic O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल यहाँ पे डाइएटोमिक है और सल्फर जो है यहाँ पे ऑक्टाएटोमिक है, मतलब 8 सल्फर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, समझो यहाँ पर 8 सल्फर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, राइट। सल्फर एटम्स का शेप कुछ ऐसा होता है, क्राउन शेप होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। ऑक्टा एटॉमिक सल्फर S8 ये हमारे सल्फर एटम, सल्फर मॉलिक्यूल का शेप होता है और ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है, राइट। तो होगा क्या कि बिकॉज इसका जो है साइज काफी बड़ा होगा S8 का एज कंपेयर टू O2, सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन S8 में ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू O2। तो जैसे तुम O2 से S8 की तरफ आओगे, ऑक्सीजन सल्फर की तरफ आओगे, तो होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिलेगा तुमको, ठीक है, इजी। ओके, लेट अस सॉल्व एमसीक्यूज। एज यू गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। हाँ सर, ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। Dash is the most electronegative element of group 16 elements. Oxygen. It is the second most electronegative element of the periodic table. ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ठीक है। देखो ऑक्सीजन स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, राइट, उसका +1 +2 दोनों ऑक्सीजन स्टेट हो सकता है, +1 +2 दोनों हो सकता है, और नेगेटिव में -2 -1 हो सकता है। ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +1 +2 वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ में हो सकते हैं। जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में कंबाइन होगा तो वो हमको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। जैसे कि एग्जांपल OF2 या O2F2, कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन नंबर से वो कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। इसका -1 हो गया, 2 है तो -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे 2 है, ये कितना हो जाएगा, +1। तो व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद फ्लोरीन इट विल हैव +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज नेगेटिव में क्या है, -2 और -1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तुम्हारे। सल्फर की बात करें तो सल्फर में नेगेटिव में सिर्फ -2 होगा और पॉजिटिव में 2 4 6। सिलेनियम में नेगेटिव में -2, पॉजिटिव में अगेन 2 4 6। सेम गोज फॉर टेलुरियम। लेकिन पोलोनियम में नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे पोलोनियम में, राइट, बिकॉज एज यू गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और मेटल्स जो है वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करते हैं। और यहाँ पे +6 स्टेट शो नहीं होगा बिकॉज ऑफ डैश, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे +6 ऑक्सीजन स्टेट भी शो नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन -2 एंड सल्फर भी +4। यस, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 होगा एंड सल्फर भी +4, राइट। यू हैव टू ऑलवेज, व्हेनेवर कंपाउंड इज गिवन टू यू, you have to write the oxidation state of most electronegative element first and then calculate for the other, ठीक है। So generally group 16 elements have common oxidation status +2, along with -2 except oxygen other elements show +2 +4 and +6. Oxygen shows positive oxidation state with fluorine, I told you just now, ठीक है। Along with these oxidation state, oxygen can exhibit yes -1 state in peroxides, you know this. Peroxides में ऑक्सीजन -1 होता है और सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन -½ होता है, -1/2 या -0.5, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीजन -1 स्टेट कब शो करेगा, पेरोक्साइड्स में, और -½ कब शो करेगा, सुपर ऑक्साइड्स में, राइट। एंड यू ऑल्सो नो दिस सुपर ऑक्साइड, इन द सुपर ऑक्साइड केस, या यू ऑल्सो नो इन द सुपर ऑक्साइड केस दैट potassium, rubidium and cesium, these three elements they form superoxides, right.
पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सी ऑक्सीजन एटम 2s2 2p4, right? Here you see there are no d orbitals in oxygen. There are no d orbitals in oxygen and excitation is not easy. You cannot excite it. You cannot excite it, right? अगर देखो +4 ऑक्सीजन स्टेट के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिटल में जाएगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे एंड देन यू कैन हैव +4 ऑक्सीजन स्टेट. बट ऑक्सीजन में क्योंकि डी ऑर्बिटल्स होती ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन को तुम एक्साइट किस में करोगे, इसलिए ऑक्सीजन मैक्सिमम +2 ऑक्सीजन स्टेट फॉर्म करेगा, मैक्सिमम +2, उससे आगे नहीं. ठीक है. अगर हम सल्फर की बात करें, ये ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये कितना मतलब ऑक्सीजन स्टेट शो कर पाएगा, +2, राइट, +2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर पाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d ऑर्बिटल में चला गया, हो सकता है कि नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d ऑर्बिटल में चला गया, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो +4 ऑक्सीजन स्टेट भी वो शो कर पाएगा. जबकि इस केस में तुम देखो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर गया, राइट. देखो आई विल शो यू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. क्या हो रहा था, यहां जो इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइट होकर इधर गया और ये वाला एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन इधर गया, राइट. तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तुमको, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले. तो ऑक्सीजन सल्फर कैन आल्सो शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. तुमको हो रहा होगा सर ऑक्सीजन पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो +6 क्यों नहीं शो कर सकता, बिकॉज उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होना पड़ेगा और एक्साइट होने के लिए डी ऑर्बिटल चाहिए, मतलब उसके हायर ऑर्बिटल में वो एक्साइट होगा. 2p के बाद 2d होता नहीं है, राइट, 2d होता नहीं है, तो एक्साइट होकर जाएगा कहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन +2 मैक्सिमम शो करेगा, +4 +6 नहीं होता है ऑक्सीजन में. स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो हमने अभी देखा. +4 कंपाउंड्स एग्जिबिट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. जो +4 ऑक्सीजन स्टेट वाले कंपाउंड्स है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे. क्यों, +4 स्टेट है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर +2 भी बन सकते हैं और इलेक्ट्रॉन देकर +6 भी बन सकते हैं, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों ही प्रॉपर्टीज +4 वाले शो करेंगे, बिकॉज 4 जो है एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है बिटवीन 2 and 6. +6 कंपाउंड्स आर ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब मुझे बताओ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या वो दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, बिकॉज मैक्सिमम +6 है, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट. और +4 और +6 जो ऑक्सीजन स्टेट वाले कंपाउंड्स हैं दे आर प्राइमरीली कोवेलेंट, राइट, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड तुमको देखने को मिलेगी. देखते हैं. अब देखो जैसे ऑक्सीजन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके एग्जांपल में है OF2, नेगेटिव -1 के एग्जांपल में है H2O2, दैट इज अ पेरोक्साइड. ठीक है. ऑक्सीजन +1 ऑक्सीजन स्टेट में है O2F2, -2 में है H2O MgO, लाइक ऑल द अदर ऑक्साइड्स दैट यू हैव, एक्सेप्ट पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स छोड़ के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो सारे -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे. सल्फर +4, तो उसमें SF4, सिलेनियम +4 में SeBr4, टेल्यूरियम +4 में TeCl4 और सल्फर +6 में SF6. So these are different examples which you don't have to of course do or remember for your exams. You know how to find out oxidation numbers, right? The tendency to show -2 oxidation state decreases down the group because metallic character increases. PO does not show -2 oxidation state but shows +2 state, again because PO is a pure metal. Except oxygen, all other elements have vacant d orbitals, that we know, right, because of which oxygen does not show +4 or +6 oxidation state. Maximum covalency. Now see, maximum covalency of oxygen atom is 4. What is covalency? How many groups you can attach to a particular atom, right? जैसे कि मीथेन में CH4, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में अटैच है तो कार्बन की कोवेलेंसी 4 होगी. इस तरह से ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी ऑक्सीजन की, इन द फॉर्म ऑफ आइस, बट मोर नंबर ऑफ टाइम्स इट शोज 2 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, राइट. आइस जो होता है दैट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इट हैज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जहां पे ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 4 हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन 2 कोवेलेंसी शो करेगा बिकॉज अगेन d ऑर्बिटल है नहीं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाओगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी उसकी 4 हो सकती है आइस के फॉर्म में, बाकी अदरवाइज 2 होती है. ठीक है. ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑफ दिस ग्रुप
shows maximum covalency of 6. बाकी सब में क्या होता है, d ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे हम सल्फर में देखा वो, और d ऑर्बिटल में जो उसके ns और np ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो सकते हैं d ऑर्बिटल में। उसकी वजह से क्या होता है, they can exhibit a maximum number of unpaired electrons of 6 and hence the maximum covalency of 6, right? ध्यान से पढ़ो, बताओ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप 16 एलिमेंट्स कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे इसमें से? सी इन जनरल पूछा है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर नहीं पूछा। जैसे पोलोनियम 6 फॉर्म नहीं करेगा, ऑक्सीजन 4 और 6 फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, और इवन पोलोनियम -2 भी नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं पूछा, इन जनरल बताना है तुमको। एन एग्जाम्पल ऑफ O-1 इज, O-1 मतलब पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Okay, let us now have a look at the chemical properties of group 16 elements, right? We will see the properties of hydrides, oxides, halides, right? Such compounds. तो देखो, the reactivity decreases from oxygen to polonium. तुम जैसे इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, तो पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स क्या होता है? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद चाल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट जब हाइड्रोजन साथ कंबाइन होगा तो हमको जो बाइनरी कंपाउंड मिलेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्राइड्स। जनरल फॉर्मूला इज H2E, वेयर E इज योर चाल्कोजन। इट कैन बी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली ग्रुप 16 एलिमेंट, राइट? H2E। ऑल दीज हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये सारे के सारे हाइड्राइड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। एसिडिक नेचर, ठीक है, देखो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दीज हाइड्राइड्स बिहेव एज वीक एसिड्स। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, दे विल एक्ट एज अ वीक एसिड। द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम H2O to H2Te। जैसे हम O से टेलुरियम की तरफ आएंगे वैसे H2O से H2Te की तरफ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सी, राइट? इसका रीजन क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप। देखो क्या होता है, आई विल शो यू हियर। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब हो क्या रहा है, तुम जब ऊपर से नीचे आते हो, राइट, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सिलेनियम है, ये टेलुरियम है। तुम जब ऊपर से नीचे आते हो, राइट, तो क्या होता है, साइज बढ़ जाती है। हाइड्रोजन, ये रेड जो सर्कल दिखा है वो हाइड्रोजन है, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन ग्रुप 16 एलिमेंट की साइज बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे आओगे तो बेसिकली इन दोनों के बीच का, हाइड्रोजन और चाल्कोजन के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, बेसिकली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सिंपल लैंग्वेज में, राइट? बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तुम जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है। तो सीधी बात है, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ये जो है एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन को रिलीज करना इजी हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे क्या होगा, बॉन्ड इजीली टूट जाएगी और हाइड्रोजन को रिलीज करना इजी हो जाएगा। नाउ सब्सटेंस व्हिच कैन रेडिली रिलीज हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, राइट? इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है? ऊपर से नीचे आओगे तो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो अगेन EH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है? मान लो अगर तुम EH बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हो, खुद सोचो, यहां क्या लिखा है वो छोड़ो, खुद सोचो, अगर तुम EH बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हो तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा इजीली, राइट? अगर तुम इसको इजीली तोड़ोगे तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी? अगर तुम इसको इजीली तोड़ोगे तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। अब जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? हाँ, कम हो जाएगी, बिकॉज जब तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है। ये कम हो जाएगी तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगी,
तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी इज स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड व्हेन यू आर सब्जेक्टिंग इट टू हीट। जब तुम उसको गर्म करते हो तो कितना स्टेबल रहता है, तो डेफिनेटली थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो ये जो है ये तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज की वैल्यू दी हुई है। H और O की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो है 463 सी। जैसे तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ चाल्कोजन, और उसकी वजह थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। अगेन सोचो, रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा। रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा। तुम जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है, तो हाइड्रोजन निकालना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है। तो इट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और नॉट सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल, राइट। सी ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। The reducing nature increases from H2O to H2TE. This is due to the weakening of EH bond as the bond length increases with the increase in the size of E atom, जो बताया मैंने तुमको, ठीक है। और इसलिए reducing nature ऐसा हो जाएगा, reducing nature बढ़ जाएगा। Water at all is not a reducing agent, right? H2S is a better reducing agent than water, then comes H2SE and lastly H2TE. The order of boiling point of hydrides of group 16 elements is, right? Boiling point of hydrides, you know that water is capable of forming H bond. Water is capable of forming H bond. Rest of them will not be able to form H bond. तो boiling point किसका ज़्यादा होगा? Water का। तो C will be your answer. Now, oxides and halides of 16th group elements. Oxides. What are oxides? Binary compounds of oxygen with chalcogens are called oxides. It has general molecular formula either EO2 or EO3, so they can exist either in form of dioxides or trioxides. Dioxides में कौन से आएंगे? देखो, अगर डाइऑक्साइड है तो E will be equal to ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, राइट। ये सिलेनियम है, ये ऐसा होना चाहिए, वो E थोड़ा नीचे चला गया है, ये सिलेनियम है, ठीक है। एंड EO3 दैट इज सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ओके। ऑक्सीजन है, पोलोनियम है, ये सब ट्राइऑक्साइड्स फॉर्म नहीं कर सकते। बोथ आर एसिडिक इन नेचर, चाहे EO2 हो मतलब डाइऑक्साइड हो या ट्राइऑक्साइड हो, बोथ आर एसिडिक इन नेचर। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स एट रूम टेम्परेचर, देखो ओजोन दैट इज O3 और SO2 जो हैं दे विल बी गैसेस एट रूम टेम्परेचर। SeO2 एंड TeO2 है, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स, देखो क्या लिखा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इट डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2, मतलब SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट व्हेयरएज TeO2 बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाइऑक्साइड्स में जैसे तुम सल्फर से टेलुरियम की तरफ आ रहे हो वैसे रिड्यूसिंग नेचर कम हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट व्हेयरएज टेलुरियम डाइऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन समझते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, जबकि TeO2 में Te का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सल्फर में द स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट विल बी +6। सल्फर में स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? +6। तो +4 से +6 में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, एंड हेंस इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जबकि टेलुरियम में क्या होगा? +4 ऑलरेडी है, राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट उसको लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा पसंद आएगा, तो टेलुरियम में ये +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, राइट। टेलुरियम में +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, जिसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहा है समझ में? रीजन समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलाइड्स की बात करते हैं। हमने हाइड्राइड्स देखा, हमने ऑक्साइड्स देखा, अब हम बात करेंगे हैलाइड्स की। लेट्स टॉक अबाउट हैलाइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद 16 ग्रुप एलिमेंट्स, राइट, आर कॉल्ड हैलाइड्स। हैलाइड्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। देखो हैलाइड्स 4 तरह के होती है। E2X2 where E is the chalcogen, EX2, EX4 and EX6 where E is chalcogen and X is a halogen. ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली O2F2 एंड OF2। ऑक्सीजन 2 ही हैलाइड्स फॉर्म करेगा,
O2F2 एंड OF2, और कुछ नहीं करेगा वो, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम F- टू I-। F- वाला जो हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा और आयोडाइड्स जो है वो कम स्टेबल होंगे, ठीक है। अमॉन्ग हेक्सा हैलाइड्स, hexafluorides are the only stable halides, right? Only hexafluorides are stable. All hexafluorides are in gaseous state which are octahedral in shape. जैसे कि SF6 की अगर हम बात करें, एक हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, तो इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, यू सी, राइट। SF6 is the most stable hexahalide. SF6 is the most stable hexahalide. रीजन, तुम नीचे जाओगे वह साइज बढ़ेगी, सल्फर की साइज कंपैरेटिवली छोटी है। दूसरा कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रांगली बाइंड करेगा सल्फर के साथ में, तो SF6 इज द मोस्ट स्टेबल हेक्साहैलाइड, राइट। इन ऑल हेक्साहैलाइड्स द सेंट्रल एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो तो समझने की बात है, आता है तुमको ये सब तो, है ना, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड वो अटेन करेगा सेंट्रल एटम, और उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। टेट्राफ्लोराइड्स, अब देखो टेट्राफ्लोराइड्स में SF4 गैस है, SeF4 लिक्विड है, TeF4 सॉलिड है, उनके फिजिकल स्टेट्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। जितने भी तुम्हारे टेट्रा फ्लोराइड्स होंगे उन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। एंड ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर और सीसो ज्योमेट्री होगी उसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। तुमको लग रहा होगा सर SF4 तो ये CH4 जैसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। SF4 में क्या होता है, I'll show you। SF4 में सल्फर, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, ठीक है, और ये होते हैं तुम्हारे लोन, सल्फर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH4 में नहीं होते। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो सीसो ज्योमेट्री होगी, और जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर, व्हेन वी कंसीडर स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये पूरा ट्राइंगल बनेगा, एक पिरामिड ऊपर की तरफ, एक पिरामिड नीचे की तरफ। तो ऐसे प्लेनर ट्राइंगल, ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, ऐसे बनेगा। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को नहीं देखते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं देखते हैं उस केस में, ठीक है। तो शेप इसका जो होगा, ज्योमेट्री जो इसकी होगी वो सीसो ज्योमेट्री होगी, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चलो, डाइहैलाइड्स की अगर हम बात करें, MX2, ठीक है, हमने अभी MX6 देखा, MX4 देखा, अब हम देख रहे हैं MX2 डाइहैलाइड्स। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सिलेनियम फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। सिलेनियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स फॉर्म करेंगे। These are sp3 hybridized with tetrahedral structure and angular shape, ठीक है, जैसे SCl2। अगेन जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर हो गया वो टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखेंगे, तो शेप क्या हो जाएगा, एंगुलर। यू सी, हो गया एंगुलर शेप हो जाएगा एंगुलर। मोनोहैलाइड्स, MX2, राइट। मोनोहैलाइड्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि देखो ये जो मोनोहैलाइड्स है ना, दे आर बेसिकली डाइमरिक फॉर्म ऑफ मोनोहैलाइड्स, दे आर डाइमरिक फॉर्म ऑफ मोनोहैलाइड्स। एक्चुअली होता क्या है, यू गेट MX बोलो या EX बोलो, you get EX, right? This is another EX, they combine to form a dimer called E2X2, ठीक है। यहाँ पे M लिखा हुआ है, तुम चाहो तो E लिख सकते हो, you can write E2X2, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगेन वेर E या M जो बोलना है, they are chalcogens and X is your halogen, ठीक है। एग्जाम्पल S2F2, S2Cl2, S2Br2, SeCl2, Se2Br2, Se2Cl2 आना चाहिए, ठीक है, Se2Cl2 एंड Se2Br2। ऑल मोनोहैलाइड्स अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हियर यहाँ पे होना चाहिए Se2Cl2, यस Se2Cl2। तो देखो यहाँ पे सिलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताओ मुझे, यहाँ पे भी सिलेनियम का बताओ। यहाँ पे सिलेनियम का क्या होगा, +4 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, +1। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन
और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, राइट। तो बिकॉज ये जो सारे चाल्कोजेंस हैं, राइट, ये मोनोहैलाइड्स में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा मोनोहैलाइड्स में। इसके अलावा 0 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 2, 4, 6 कुछ भी, राइट। तो इसके कारण ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। 1 इज इंटरमीडिएट बिटवीन 0 एंड द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। व्हाट आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। पढ़ चुके हो तुम ये भी, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे